Bismillah Rahman Rahim. Dear students, you are most welcome to our new class. Today we are going to start a new lessons that is known as in the English grammar direct speech and indirect speech. Here we can rename it as a direct narration and indirect narration. First of all, we must know that what is direct speech. Direct speech is actually the words of the speaker. When these words are elaborated by any third persons, these words will always be written in inverted commas. And the actual words of the speakers are repeated without any change and without any amendment. And the same words are reproduced within the commas, within the inverted commas and commas closed. In the simple words, we can say that in the direct narrations, no single word is changed by the person who is elaborating the things which were given, or the talks, or the words which were produced by the actual speaker of the direct narrations. So this is all about the direct narrations, and inshallah we shall discuss all these on the whiteboard as well. And now we want to know that what is indirect speech. An indirect speech or indirect narration is totally different from the direct speech. Here, the actual words of the speakers are not reproduced, but the words of the speakers are elaborated in the own words of any person who is just elaborating the actual words of the speaker. He will use his own words. He will never use the actual words of the speakers. But here, keep one thing very much important in your mind, that the sense of the sentence will never be changed by the persons who is producing the words of the speaker. The words will be converted into own words and the sense of the sentence will remain the same. So, in the very short words, we can say that the actual words of the speakers are reproduced by anybody in the same way, but the sense of the sentence or the message of the speaker is never changed. Here we shall give you a certain examples of the direct speech and further its conversion into the indirect speech, so the others may know the changing and the conversions of direct narrations to the indirect narration. Let's see certain examples on the whiteboard so that you may comprehend these narrations very easily, and so you may perform well whatever the test you are going to appear for any purpose. That may be your qualification, or you might have applied for any job in the government of Pakistan, federal or in the provincial or in the military institutions of the Pakistan Defence Forces. So these narrations would be very helpful. Its rules, its regulations, and what are the things which are related to its conversions are always to be noted. Now, gentlemen, we shall continue the certain examples of direct and indirect speech. Students, I want to tell you very important, that when we are coming across with the certain sentences of the direct speech and the indirect speech, we must be knowing the structure of the sentence. Here we can see, he said to me, this is the first part of the sentence, right? Starting from the subject and up to the ending of this object of the sentence. This part of the sentence is always known as reporting speech. Who is reporting to whom? Here we say, he said to me, उसने मुझसे कहा. It means यहाँ पे वो बंदा मुझे रिपोर्ट दे रहा है, या उस बंदे ने मुझे रिपोर्ट दी थी, उस बंदे ने ये मुझे बताया था. यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका जो सेंटेंस है, इसको हम क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच. यहाँ पे कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को कुछ मैटर रिपोर्ट कर रहा है, तो इसलिए ये जो आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, ये जो आपकी फर्स्ट क्लास है इस सेंटेंस में, इसको आप कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच. नेक्स्ट, when the comma is here and the other commas, inverted commas begins and commas close, the statement which is always written in between the commas. एक्चुअली ये हैं वो स्पीकर के अल्फाज, ये हैं उस
कलाम करने वाले शख्स के असल और हूबहू अल्फाज जो कि हमने इन्वर्टेड कामास के अंदर लिख दिए हैं। अमूमन डिफरेंट जो कोटेशंस होती हैं, ठीक है, डिफरेंट जो इस तरह की सेइंग्स होती हैं, या कोई भी स्पीकर बात करता है उसकी बातों को हूबहू उस अल्फाज में लिख देने को हम क्या कहते हैं जी, रिपोर्टेड स्पीच। इसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ से लेकर यहाँ एंड तक आपका जो पूरा सेंटेंस है इसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। जैसा कि हमने पहले आपको बड़े अच्छी तरीके से ये वजाहत कर दी है कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, डायरेक्ट नरेशन क्या होता है। डायरेक्ट नरेशन यही है कि आप किसी भी स्पीकर के जो मुतकल्लिम के अल्फाज हैं, आप उनमें कोई भी तब्दीली किए बगैर, किसी किस्म की कोई तब्दीली किए बगैर आप स्पीकर के अल्फाज को, मुतकल्लिम के अल्फाज को आप हूबहू बयान कर देते हैं, आगे किसी को आप कन्वे कर देते हैं, आगे उसके अल्फाज को आप आगे इम्पार्ट कर देते हैं, उसमें किसी किस्म की कोई आप अमेंडमेंट या तब्दीली नहीं करते। तो उस सूरत में वो जो स्पीकर के अल्फाज इन्वर्टेड कामास के अंदर आएंगे उनको हम कहेंगे डायरेक्ट स्पीच, क्योंकि इनमें अभी हम कोई तब्दीली नहीं कर सके हैं। ठीक है, दिस स्टेट ऑफ द कंप्लीट सेंटेंस, दिस इज द फर्स्ट क्लास एंड दिस इज द यू कैन सी सेकंड क्लास, प्रिंसिपल एंड द सबऑर्डिनेट क्लास। हियर वी सी इन बोथ सेंटेंसेस that this is known as the direct speech. There is no change. Up till now it might have been clear to you people that you have learned. Next, we want to convert this direct speech into indirect speech. So, for this conversion purpose, certain rules are being followed. For the successful conversion or the change of direct speech into the indirect speech, we will have to look after all those principles which has been laid down by the grammarians, and we will have to follow up those rules. If we don't follow those rules, ultimately we may commit some mistake, and this mistake will leads us to the failure. So gentlemen, it is very much necessary to understand such principles, rules and the regulations for the conversion of the direct to the indirect speech. Along with this lesson, we shall continue the certain rules and the regulations which are being applied in this conversion from direct speech to the indirect speech. Here we say, first of all, there will be the changes of the pronouns. The changes of the pronouns that is to be kept in the mind by all means. As we all know that pronoun, it is a word which is used instead of a noun. इसको उर्दू ज़बान में हम इसमें ज़मीर भी कहते हैं, और ये प्रोनाउन जो कि ऐसे अल्फाज किसी इसम की जगह पे इस्तेमाल होते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। फर्दर जो इंग्लिश ग्रामेरियंस हैं उन्होंने प्रोनाउंस को सर्टन क्लासिफिकेशन इसकी की है, सर्टन इसकी आगे से उन्होंने वो काइंड्स बना दिए हैं, जैसे कि मैक्सिमम यहाँ पे इस्तेमाल हम करते हैं पर्सनल प्रोनाउंस का। पर्सनल प्रोनाउंस जैसे मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये एक्सप्लेन किया था प्रीवियस क्लास में कि पर्सनल प्रोनाउन 3 किस्म के होते हैं और उनके 3 ही केसेस हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन। इसीलिए इनके हम केसेस पहले देख लेते हैं, सब्जेक्टिव है, फिर इनके पोजेसिव केसेस हैं और फिर उनके बाद इनके ऑब्जेक्टिव केसेस हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आई, माई, मी, वी, आवर, अस। आई और वी जो है ये सब्जेक्टिव हैं, माई और आवर ये इनके पोजेसिव केस हैं, और आई, माई, मी एंड अस, मी और जो अस हैं ये इनके ऑब्जेक्टिव केसेस हैं। 3 केसेस जैसे कि मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसकी आइडेंटिफिकेशन भी देता हूँ। पहले केस को हमेशा सब्जेक्टिव कहते हैं, दूसरे को पोजेसिव कहते हैं और तीसरे को ऑब्जेक्टिव कहते हैं। फर्स्ट इज आई, माई, मी, एंड देन वी, आवर, अस। अप टिल हियर दीज आर कॉल्ड फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। आगे हम देखते हैं सेकंड पर्सन प्रोनाउन। वो कौन से हैं? यू, योर, you. These are the second person pronoun. और आगे हम देखते हैं जी थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ये कौन से हैं? थर्ड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड पर्सन प्रोनाउन he, she, it and they. These are called third person pronoun. He, his, him. She, her, it
its, it, they, their, and them. These are called personal pronouns. These are called personal pronouns. ये जो first case है इसको हम कहते हैं subjective case. All pronouns falling in this row, in this line, they are known as first person pronoun, and the pronouns falling in the center of this personal pronoun, these are called possessive pronoun, and these are called me, us, you, him, her, it, and them. These are also known as objective case. This is subjective case, this is possessive case, and this is objective case. In Urdu language we say halat faili, हालत मलकियती. इट इज शोइंग सम पोसेशन. ये किसी न किसी किस्म की आपकी मलकियत को जाहिर करता है. That's why we call it as a possessive case, and this one is the objective case. Now we shall proceed to the change of the pronouns from direct speech to the indirect speech, how these pronouns are converted. So you must be knowing, I will explain it to you. One is always that the first person pronoun of the reported speech. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच. अगर यहाँ पे कोई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, अगर यहाँ पे कोई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो वो आपके रिपोर्टिंग स्पीच के, आपके रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, वो आई, माई, मी, वी, आवर, अस, इन 6 में अगर कोई एक भी प्रोनाउन है और वो एग्जिस्ट करता है आपकी इस रिपोर्टेड स्पीच में, और जब आप कन्वर्शन कर रहे होंगे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में, तो आपका जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है हमेशा चेंज होगा आपके रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ. दिस इज द फर्स्ट रूल. सो प्लीज कीप दिस थिंग इन योर माइंड ऑलवेज, that the first person pronoun of the reported speech will be changed with the subject of the reporting speech. Up till now it's clear, and now we take the other step and we look into the second rule of this conversion of the pronouns from the reported speech to the reporting speech. If there is second person pronoun, if there is second person pronouns are existing in this reported speech, the second person pronoun will always be changed with the object of the reporting speech. और आसान अल्फाज में मैं आपकी वजाहत कर देता हूं, जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया है कि आपके रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई, माई, मी, वी, आवर, अस, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये हमेशा आपके रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ चेंज होंगे. और अगर आपके इस रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन प्रोनाउन आते हैं, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है यू, यूर, यू, अगर ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो ये तब्दील होंगे आपके रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ. नाउ थर्ड रूल, इफ देयर इज एनी थर्ड पर्सन प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच, अगर आपके इस रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कामास के अंदर कोई थर्ड पर्सन प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही, हिज, him, she, her, it, its, it, they, their, them. These are called third person pronoun. अगर इन थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कोई एक भी प्रोनाउन एग्जिस्ट करता है आपकी इस रिपोर्टेड स्पीच में, so keep this thing in your mind that there will be the no conversion and no change of third person pronoun at any cost. They will remain stand still. No change or no conversion will be conducted of third person pronoun. So this was all about the rules related to the conversions of the pronoun or the changings of the pronoun from direct speech to the indirect speech. Now we proceed to the certain other rules, that how you will convert the other changes and how you will bring the other changes in these direct to the indirect narrations. So gentlemen, keep this thing in your mind that if in the reporting speech, if there is present tense or any future tense in the reporting speech, and there is present, past or future or whatever the tense is there in the reported speech, then the verb of the reported speech will not be changed at any cost.
हमेशा याद रखें, एक दफ़ा फिर मैं मज़ीद आसान अल्फाज में आप लोगों की समझ के लिए ये वजाहत कर देता हूँ कि अगर बाहर कोई प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस है मीन्स के रिपोर्टिंग स्पीच में, और अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें भी कोई टेंस आ गई है, वो प्रेजेंट हो सकती है, वो फ्यूचर हो सकती है, वो कोई टेंस हो सकती है, उसमें आप टेंस की बिल्कुल भी तब्दीली नहीं करेंगे। लेकिन ये बात ज़हन में रहे कि प्रोनाउंस की तब्दीली हर सूरत में की जाएगी, हर सूरत में प्रोनाउंस की तब्दीली की जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे हम देखते हैं बाहर पास्ट है और अंदर प्रेजेंट है, तो अंदर की जो प्रेजेंट है वो पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। बाहर पास्ट है, अंदर पास्ट इंडेफिनिट है, यहाँ पे जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है वो पास्ट परफेक्ट में चली जाएगी। अगर बाहर पास्ट है और अंदर रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट परफेक्ट है तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट हो जाएगी। ये सर्टेन रूल्स हैं जो कि जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और चीज़ मैं आपको वजाहत कर दूं, अगर आपके इस रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ हम एक आलमगीर हकीकत को कहते हैं, जैसे अल्लाह इज वन, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। ये क्या है? ये यूनिवर्सल ट्रुथ हैं। These are the universal truth which can never be changed. So mind this thing very much that if there is any universal truth, एक ऐसी आलमगीर हकीकत जो कि यहाँ पे इन्वर्टेड कामास के अंदर बयान की गई है, उसमें आप किसी किस्म की तब्दीली करने के मजाज नहीं है। ग्रामेरियंस आपको कभी भी अलाउ नहीं करेंगे आप उसमें चेंज करें। अगर आप उसमें चेंज करेंगे, किसी किस्म के वर्ब की चेंज करेंगे या प्रोनाउन को चेंज करने की कोशिश करेंगे, तो आपका पूरे का पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा और इस तरह से ये आप अपना लॉस कर सकते हैं, आपके मार्क्स वहाँ से डिडक्ट हो सकते हैं। तो ये जो आपके यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, आप उनको किसी भी सूरत में आप चेंज नहीं करेंगे। नाउ हम थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं कि ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है, अब हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं ताकि आपको पता चले कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह कन्वर्शन होती है। Now we shall convert the simple sentence of direct speech into the indirect speech. See here. So gentlemen, we have converted this direct speech into the indirect speech. First of all, we took the first very basic step, that we have converted this said into told. If there is says, that will be converted into tells. अगर यहाँ पे said आ गया तो वो told में तब्दील होगा। Otherwise आप said भी लिख सकते हैं, ये से आप वो का सेंटेंस गलत कभी भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। और नेक्स्ट आपने कि said to me, हमने इसको कन्वर्ट किया he told me. अब फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ दिस कॉमास, ठीक है, यहाँ पे हमने एक एडिशन किया दैट का, यहाँ पे हम दैट का एडिशन करेंगे। और नेक्स्ट जो आपने अगला स्टेप लेना है, दैट इज द प्रोनाउन ऑफ दिस रिपोर्टेड स्पीच। नाउ यू विल आइडेंटिफाई, दिस इज योर ड्यूटी टू नो अबाउट द पर्सनल प्रोनाउन, एज आई हैव एक्सप्लेन्ड इन दिस लेक्चर दैट देयर आर सर्टेन पर्सनल प्रोनाउंस, आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, आर, इट, इट्स एंड दे, देयर, दैट। ये जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं इनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक कि आप इनको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, आप किसी भी किस्म की एक छोटी सी मिस्टेक करेंगे और उस छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपका पूरा सेंटेंस गलत हो सकता है। लिहाजा आपने ये बहुत एहतियात के साथ देखना है कि जो आपके पर्सनल प्रोनाउन हैं, अब जैसे यू है, दिस इज द पर्सनल प्रोनाउन, दिस इज द सेकंड पर्सनल प्रोनाउन, and it is also the subjective case because it is being used just very beginning, just in the very start, in the very beginning of the sentence. So we will say that it is the subject of the sentence. इस सब्जेक्ट को, जैसे मैंने पहले आपको रूल्स रेगुलेशन बता दी हैं कि अगर यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर आप सेकंड पर्सन प्रोनाउन आप उससे कम अक्रॉस होते हैं तो वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन हमेशा इसके ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होंगे रिपोर्टिंग स्पीच के। तो हमने रिपोर्टिंग स्पीच के साथ इसको ऑब्जेक्ट के साथ चेंज किया। अब मी जो है, दिस इज द ऑब्जेक्टिव केस, बट हियर इट इज द सब्जेक्टिव केस। सो वी शैल ब्रिंग द सब्जेक्टिव केस ऑफ मी। द सब्जेक्टिव केस ऑफ मी इज ऑलवेज आई, so that we have written I, and now you will see that how the tense will be converted. Is and are is always used in the present sense,
was were in the past, will shall in the future. So you see that here it is the present sense. You can say that it's the present tense. But in the outside, in the reporting speech, there is the past indefinite tense. So due to this past tense, this tense will be converted into the past. इसकी जो सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, वो हम लगा लेंगे, वो आएगी was. आई हमने लिखा सब्जेक्टिव केसेस का, was का हमने यहाँ पे एडिशन किया, I was a good boy, और बाकी जो सेंटेंस था हमने ये जो कॉमास थे ये रिमूव कर दिए. आपके जो रिपोर्टिंग स्पीच थी और रिपोर्टेड स्पीच थी, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो डायरेक्ट आपका नारेशन था, स्पीच थी, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया. अब हम ये कह सकते हैं, जैसे अगर हम इसको उर्दू जबान में ट्रांसलेट करें, He said to me, उसने मुझसे कहा, क्या कहा? You are a good boy, आप एक अच्छे लड़के हैं, या आप एक अच्छे लड़के हो, या तुम एक अच्छे लड़के हो. ये अल्फाज हमने कॉमास के अंदर लिख लिए थे. अब हमने इसको इनडायरेक्ट में चेंज किया. He told me, उसने मुझे बताया कि मैं अच्छा लड़का था. अब चूंकि जो सेंस ऑफ द सेंटेंस है हमने बड़ा डिटेल से डिस्कस किया है. दिस इज कॉल्ड द सेंस ऑफ द सेंटेंस. जो सेंस है वो तब्दील बिल्कुल भी नहीं करना, और तब्दील कर भी नहीं सकते. अगर आप इसको तब्दील करने की कोशिश करेंगे आपका पूरे का पूरा फिक्रा गलत हो जाएगा. सो जेंटलमैन, ये थे सर्टेन रूल्स और रेगुलेशंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में. आज की क्लास में हमने ये डिस्कस किया है कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है. डायरेक्ट स्पीच ये होता है कि जिसमें स्पीकर के जो अल्फाज होते हैं उनको हूबहू उन्हीं अल्फाज में बयान कर दिया जाता है और उनको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता है. लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में जब कोई बोलने वाला किसी स्पीकर के अल्फाज को बोलता है तो उनको अपने अल्फाज में वो तब्दील कर लेता है और सर्टेन ग्रामर के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए. लेकिन उस स्पीकर का जो एक मुद्दा था, उसका जो सेंस था, उसका जो मैसेज था, वो कभी भी चेंज नहीं होगा. बाकी प्रोनाउन की तब्दीलियाँ और ये छोटी मोटी तब्दीलियाँ होती रहेंगी. सो जेंटलमैन, ये था आज का हमारा लेसन जिसमें हमने डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच और इसके मुख्तलिफ कवानीन के बारे में पढ़ा. और मुझे उम्मीद है कि आप इसके बारे में अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और आपको इससे काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी. इंशाल्लाह हम अपने अगली क्लास में अब बड़ी तफसील के साथ ये चीज़ पढ़ेंगे कि जो डायरेक्ट स्पीच है, असर्टिव सेंटेंस की सादा जो जुमले हैं, सादा फिक्रे हैं, उनको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज किया जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, और जो ऑप्टेटिव सेंटेंस हैं उनको आप कैसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं. इंशाल्लाह हम जो हमारी जो अगली क्लास होगी उस क्लास में हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएंगे और ये जो 5 टाइप्स हैं सेंटेंस की, ये हम डिटेल से इनकी कन्वर्शन भी करेंगे और आपको रूल्स और रेगुलेशन इनके बारे में बताएंगे. और मैं अपने तमाम व्यूवर्स से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोग ये चैनल देख रहे हैं, बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें. इसको लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ. जब आप बेल आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियोस आप बआसानी देख सकते हैं और आप अपने इल्म में इजाफा कर सकते हैं. बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.